Today is the 40th day of the super advanced level of series of the theme. And the theme of the session, which is feeling secure no matter what. And I think we are at the completion of the third month. We started on 28th of March. So a big round of applause for all the participants who made this session a real super success. And really participated physically and mentally in these sessions. And today again, we are fortunate enough to we have 3 days coming on the same day. One is today is also the Father's Day, the International Yoga Day, and the solar eclipse. So I think time is not the constraint for anyone because everyone can now switch on and really take advantage of these sessions. And today again, we have our Raj Yoga teacher, Raj Yoga Guru, Brother Rajiv Gupta, who is an excellent trainer in soul consciousness stage. And today again, he is there within us. So we just welcome him with one hand. एक हाथ की ताली से हम उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे. Welcome Rajiv Bhai, and we are really fortunate to have you within us, among us. Today, I would like to, because there are many people, those who are newly joined this session. So just to introduce, give a small and short introduction of Rajiv Bhai ji. Rajiv Bhai ji is a Raj Yoga teacher and he has joined Brahma Kumaris. He's into Brahma Kumaris since past 23 years. He's got a very good, rich and deep experience of meditation, and that meditation, which is actually the need of the hour. This is not a physical meditation, but a mental meditation, which I really feel. And these mental meditation, and when you have a practical hand on these meditations, this is something very important, and which we're going to get a very beautiful demo and training today by Rajiv Bhai ji. Rajiv Bhai ji is an IT scholar. He's an IT engineer, and he is also a freelancer software developer to many top-notch companies. He is also a very good Gita scholar, and for that reasons, many of the companies do invite him, many organizations, they invite him to have a very beautiful debate and the realistic approach to Gita. Also, he is a member of Spark Wing of Brahma Kumaris, wherein he is a meditation, I would say soul conscious stage researcher, and many more topics he researches on and keeps sharing his beautiful experiences with all you divine souls. So today I would again, with a great heart, welcome Rajiv Bhai ji in today's session. Rajiv Bhai ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. ओम शांति. ओम शांति. आज ऐसे भी योगा डे है और सबको जो है मुबारक हो योगा डे की. और आज पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी तरीके से योग की चर्चा कर रहे हैं. पूरा का पूरा देश जो है कहीं ना कहीं, भले कोरोना है लेकिन फिर भी योग के प्रयोग और उन सब की बातें जो हैं की जा रही हैं. सो टुडे विल जस्ट सी व्हाट योगा इज, हाउ people consider yoga, and what is the important or prerequisite which is needed for yoga. योगा के लिए पूर्व आवश्यकताएं क्या हैं, योगा है क्या और कैसे इसका कनेक्शन है, थोड़ा इसकी बातों को हम जानेंगे. यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट योगा डे, लोगों के मन में सबसे पहले हठ योग की बातें आ जाती हैं. लेकिन भारत जिस योग के लिए फेमस है, दैट योगा इज़ नॉट हठ योगा एट ऑल. महर्षि पतंजलि ने आज से लगभग 2200 वर्ष कह सकते हैं लगभग. अगेन इट इज़ एक अपने आप में चर्चा का विषय है. ऐसे माना जाता है कि आज से लगभग 2200 वर्ष पहले उन्होंने योग दर्शन की रचना की या योग सूत्र की रचना की. एंड ही डिफाइंड, उन्होंने योगा की डेफिनेशन दी. योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है.
योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरे सूत्र में उन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती आ रही हैं तब से। और ऐसे नहीं कि महर्षि पतंजलि ने योग सिखाया, भारत योगियों का देश है। महादेव या कृष्ण ऐसे बहुत सारे हमारे इष्ट हैं जिनके पीछे जो है योगेश्वर वर्ड शब्द जो है जोड़ा जाता है। शिव को योग का जो है आदिदेव कहा जाता है, ऐसे भी माना जाता है। और केवल भारतीय परंपरा की बात नहीं है, और भी जो धर्म हैं, चाहे वो जैन धर्म के लोग हों, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हों, कहीं ना कहीं योग जो है मशहूर रहा ही है शुरू से लेकर। और योग के पहले गीता, योग दर्शन के पहले बताते हैं गीता रची गई, और गीता में भी जो है योग की परिभाषाएं, दूसरे अध्याय में योग की डेफिनेशंस भी आ जाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और लेकिन स्कैटर्ड हैं, थोड़ी बिखरी हुई है। गीता में एक छठा अध्याय है जो योग के ऊपर आता है, लेकिन फिर से उसमें कहीं ना कहीं फिर से हठ योग की थोड़ी बहुत अंश आ जाते हैं। तो लोग शायद ये समझते हैं कि जो है योग जो है ये वही योग है शायद हठ योग जिसके लिए भारत मशहूर है। और आज पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ब्रांडिंग चल रही है भारत की योगा की। सो पीपल दे आर फोकस मोर टुवर्ड्स हठ योगा, बट दिस वाज नॉट फॉर विच इंडिया वाज फेमस। दिस वाज वन ऑफ द पार्ट, एक हिस्सा था शरीर को संयमित रखने के लिए, क्योंकि शरीर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो उसका तन के ऊपर भी असर पड़ता ही है, दैट्स फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम जो भी सोचते हैं, आप जानते हैं कि जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जो डिजीजेज होती हैं उनका कनेक्शन माइंड के साथ पहले आता है। बट आश्चर्य की बात है कि हमारे पास सबके लिए टाइम है, लेकिन माइंड के लिए टाइम नहीं है। सोचने वाली बात है। आज सब जानते हैं, आज पूरे भारत में लोग कहेंगे कि योग के लिए कम से कम हमें डेली योग के लिए टाइम देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए? रफली पीपल विल से एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मिनिमम। तो जब हम योग के लिए, उस हठ योग के लिए 1 घंटा समय निकालने के लिए तैयार हैं, और जो समय नहीं निकालते हैं तो समय उन्हें जो है तैयार कर देता है। जब लोग 40-50 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं और कई डॉक्टर्स का इंतजार करते हैं कि डॉक्टर्स हमें जब कहेंगे तब हम योग करने जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। जब हमारी आयु जब पहुंचती है तब हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो सोचने वाली बात है कि 24 घंटे में से लगभग 17-18 घंटे हम अपने बॉडी को यूज करते हैं। 17 to 18 आवर्स, 17 to 18 आवर्स। 6 घंटे निद्रा करते हैं, 6 घंटे नींद करते हैं, तो बॉडी को इतना यूज करते हैं। सो वी फील दैट एटलीस्ट 1 आवर इज मैंडेटरी, 1 आवर इज नीडेड। लेकिन हम में से किसका ध्यान मन की तरफ जाता है? क्योंकि ये जो माइंड है ये 24/7 यूज हो रहा है। रात को हम सो जाते हैं, फिर भी ड्रीम्स आते हैं और प्रोसेसिंग चलती रहती है, तो ये तो बॉडी से भी ज्यादा यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है यूज माइंड हो रहा है। तो जब योग बॉडी को हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए 1 घंटा दे रहे हैं, तो जब माइंड को 24/7 यूज कर रहे हैं तो इसके लिए कितने आवर्स होने चाहिए पर डे में, इसको ठीक रखने के लिए या फिट रखने के लिए? सोचने वाली बात है। और मैं नहीं मानता हूं कि केवल 1 घंटे से ही हमारा मन शांत हो जाएगा। जो आज की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, तो आई डोंट थिंक दैट 1 आवर इज इनफ फॉर माइंड। 1 आवर तो सिर्फ हमारे पतन को कहीं ना कहीं रोकेगा जो चल रहा है। 1 घंटे मन को समय देने से मन स्वस्थ नहीं रहेगा। ये हम समझिए, 1 घंटा हमने शुरुआत की, 1 घंटा सफिशिएंट नहीं है। हाँ, बट जिसके पास हिम्मत नहीं है तो शुरू के लिए 1 घंटा ठीक है, चलिए कम से कम 1 घंटा तो निकाला जाए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये आवश्यक, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। गीता कहती है योग जो है कर्मों की कुशलता है, लेकिन लोगों ने, जहाँ तक हमने समझा है या जहाँ तक हम लोगों को देख रहे हैं, लोग समझते हैं कर्म में तल्लीन हो जाना योग है, और कर्म करना और फल की इच्छा न रखना ये योग है। गीता केवल इस योग की व्याख्या नहीं दे रही है। हमारे यहाँ पे योग की व्याख्या बहुत ही गहन है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म इतना अट्रैक्ट करने लगता है कि हम कर्म के पीछे ही तल्लीन हो जाते हैं। और दुनिया में किताबें आती हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा किताबें आती हैं, हाउ टू बिकम रिच, कम समय में पैसा कैसे कमाया जाए, नाम और शोहरत कैसे कमाया जाए। सक्सेस की परिभाषा ही वहाँ बदल गई है। तो ये योग नहीं है, कर्मों में लग जाना योग नहीं है, और कर्म करना और फल की इच्छा न रखना
जो प्राय मनुष्य कर नहीं पाता है। प्राय मनुष्य कर नहीं पाता है, कर्म करे और फल की इच्छा न रखे। बच्चा एग्जाम दे और फल की इच्छा न रखे, व्यक्ति कर नहीं पाता है। तो समझता शायद ये योग है। हमारे यहाँ योग की परिभाषा बिल्कुल ही डिफरेंट, और वही योग की परिभाषा है जो परमात्मा ने आज से 5000 वर्ष पहले सिखाई थी। योग है कर्मशु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता की बात बताई गई है। तो कर्मों की कुशलता तब आएगी ना जब हमारा सबसे पहले योग होगा। और दूसरी तरफ गीता में आता ही है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, अपने मन को मेरे मन में लगाओ। पर यह तो जानना आवश्यक है कि मन होता क्या है, मन के कंपोनेंट्स क्या है, एंड हाउ माइंड वर्क्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल। तो हम पहले इस शॉर्ट सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मन काम कैसे करता है, और लास्ट के 20-25 मिनट्स हम अपने आप को जो है इस तन से अलग करके उस मन को परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि योग शब्द जो है इट इज डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड यूज, जिसका मतलब होता है कनेक्शन या यूनियन। कनेक्शन किसका किसके साथ? कनेक्शन हम आत्मा का उस परम पिता परमात्मा के साथ। तो ना आज हमें परमात्मा की हम जो है पहचान में मनुष्य भटक रहा है, और ना आत्मा की पहचान। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बचपन से सुनते आए हैं, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजर अवर अविनाशी है। लेकिन उस आत्मा अनुभूति के लिए हमने क्या प्रयास किया है, वो भी एक सोचने का विषय है। तो आज हम शॉर्ट टाइम में योग की थोड़ा सा परिभाषित करेंगे, और योग का जो सबसे मूल सूत्र जो मैं कहूँगा वो है अंतर्मन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जस्ट आई विल शेयर अ स्लाइड जिससे हमारा विषय काफ़ी आसान हो जाए। मैं एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। हमारा ध्यान स्लाइड की तरफ बना रहे, इसलिए जस्ट मैं वीडियो मोड स्टॉप करता हूं। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे चेतना है और यहाँ पे परमपिता परमात्मा है, दोनों एक। तो आत्मा को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करना ही, उसे ही वास्तव में क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योग केवल शारीरिक क्रिया का विषय नहीं है। सो हाउ डू वी डिफाइन राजयोगा? सो राजयोगा इसे क्यों कहा जाता है? हम जो योग सीखते हैं यहाँ पे इसे राज योगा कहा जाता है। इसी राज योगा के बहुत सारे नाम हैं। राज योगा मतलब दुनिया में जितने भी प्रकार के योग सिखाए जा रहे हैं ये सभी योगों का राजा है, इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। इसे कर्म योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति कर्म करते टाइम भी अपने मन को भगवान में लगाए रख सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। दैट्स वाई इट इज नॉन एज कर्म योगा। इट इज नॉट ओनली नॉन एज कर्म योगा बिकॉज हम कर्म करें और फल की इच्छा ना रखें, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्म करते भी हमारा ध्यान परमात्मा में रहे, ऐसा पॉसिबल है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसी के प्यार में फिदा रहता है तो काम भले हाथ से करता है लेकिन उसका मन जो है जिससे प्यार रहता है उसमें लगा रहता है। सो दिस राज योगा इज ऑल्सो नोन एज कर्म योगा। अब परमात्मा के साथ मन लगाने के लिए हमारे अंदर भक्ति भाव भी होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम भक्ति योगा भी है। लोगों ने भक्ति योग भी रखा, और क्योंकि ये मन और बुद्धि का विषय है इसलिए इसे लोग ध्यान योग भी कहते हैं। इसी योग के गीता में अनेक नाम जो है दिए गए हैं। सो इन सिंपल स्टेप हाउ डू वी डिफाइन राज योगा? सो राज योगा इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। राज योगा में 2 प्रोसेस होता है। पहला होता है, योग शब्द का मतलब ही है जोड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। तो व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज अ सोल? नाउ आज की जनरेशन में अगर हम आत्मा वर्ड यूज करते हैं तो लोगों के माइंड में अलग अलग प्रकार के थॉट्स आते हैं, क्योंकि आत्मा कुछ और शब्दों का पर्यायवाची हो गया है। तो आत्मा क्या होती है, माइंड क्या होता है, वो समझना जरूरी है। फ्रीक्वेंटली वी यूज द वर्ड माइंड एंड ब्रेन, सो वी शुड नो द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन। माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। माइंड मेटाफिजिकल है और ब्रेन फिजिकल चीज है। डॉक्टर ब्रेन सर्जरी करता है, माइंड सर्जरी नहीं करता है। सर्जन जो है ब्रेन सर्जरी करता है, माइंड सर्जरी नहीं। हम कहते हैं कि इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, माइंड हेमरेज नहीं होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। सो माइंड इज अ फिजिकल थिंग, माइंड इज अ मेटाफिजिकल थिंग एंड ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग। माइंड इज लाइक अ रैम एंड ब्रेन इज लाइक अ हार्ड डिस्क, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है।
पूरे जन्म का डेटा जो है हमारे हार्ड डिस्क या फिजिकल ब्रेन में रहता है। कईयों का हार्ड डिस्क डैमेज हो जाता है तो लोग कहते हैं कि हाँ, इनको कुछ ना कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन दैट वी शुड रियलाइज, एंड माइंड कंट्रोल्स द ब्रेन। Here you can see mind is controlling the brain. So who we are, हम कौन है? तो भारतीय परंपरा ये बताती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से हटकर एक शक्ति हैं। उस शक्ति को आत्मा कहा जाता है, साइकोलॉजी में उसे माइंड कहा जाता है या कॉन्शियसनेस कहा जाता है, स्पिरिट कहा जाता है, इसके बहुत सारे नाम हैं। सो लेट्स सी इन ब्रीफ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल। तो यहाँ पे बताया जाता है कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं जो हमें समझना बहुत आवश्यक है। वह 3 शक्तियों में एक शक्ति है माइंड, जिसे मन कहा जाता है। दूसरी शक्ति है बुद्धि। तीसरी शक्ति है संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। कई बार भारतीय परंपरा में लोगों ने उसको अलग भागों में बांटा है, मन, बुद्धि, अहंकार, बट यहाँ पे बताया जाता है मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम 2 चीजें करते हैं, सोचते हैं और फील करते हैं। माइंड डज द वर्क ऑफ थिंकिंग एंड प्रोड्यूसिंग इमोशंस। मन के द्वारा हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। अभी जो हम योग के विषय में जो कुछ बातें मैं बता रहा हूं, आपका कहीं ना कहीं थिंकिंग चालू है। ये क्या हमें सिखा रहे हैं, क्या परिभाषा बता रहे हैं? ये थिंकिंग का काम कौन कर रहा है? माइंड। बुद्धि का कार्य होता है डिसीजन करना, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आज मैं ये ऑनलाइन वेबिनार के लिए ज्वाइन हूं कि ज्वाइन ना हो, ये डिसीजन किसने किया? बुद्धि ने किया। और बुद्धि के द्वारा हम देखते भी हैं। बुद्धि को कहा जाता है आत्मा के नेत्र हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट शक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शक्ति, जिसका नाम है संस्कार, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं हैबिट्स। और आजकल लोग कहते हैं हैबिट्स डाई हार्ड। आदतें जल्दी बदलती नहीं हैं, और कुछ आदतें हमारी ऐसी हो गई हैं जो ऑटो पायलट मोड पे ऑपरेट होती हैं। तो हम जो योग को कई लोग ध्यान के पर्यायवाची में भी यूज करते हैं, और उसके लिए एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, हाउ डू वी डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एक साथ साथ काम कर रहे हैं, इसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। माइंड एंड इंटेलेक्ट, दे आर वर्किंग टुगेदर, देन इट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। चलिए एक छोटा सा एक डेमो करते हैं। मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा विश्वास करता हूं। आई होप हम सभी के सभी तैयार होंगे। 2 मिनट के लिए आप सभी रिलैक्स हो जाएं, एकदम रिलैक्स हो जाएं। आज हम योग की अनुभूति भी करेंगे, कुछ एक अनुभूतियां भी करेंगे। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। आंखें भले हम बंद कर सकते हैं अच्छे अनुभव के लिए। जस्ट क्लोज योर आईज। और विजुअलाइज करें एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल, बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल। हमारा ध्यान गुलाब के फूल की पंखुड़ियों पर। कैसा होता है रंग गुलाब का, मेरा ध्यान पूरा उसी के ऊपर है। और उस गुलाब पे बहुत सुंदर पानी के छींटे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, फ्रेश। और गुलाब के फूल की खुशबू, इस पर भी मेरा ध्यान है। कैसे होती है गुलाब के फूल की खुशबू? मैं महसूस करने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। और इतने में वह इंसान या वह व्यक्ति जो मुझे लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वह मेरे समक्ष आ जाता है। और ये गुलाब का फूल बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, वो इंसान जो लाइफ में सबसे ज्यादा हमें प्यार कर रहा है, उसको विजुअलाइज करें। और वो बड़े प्यार से ये गुलाब का पुष्प हमें प्रेजेंट कर रहा है, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। ओम शांति।
अभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे स्लोली। तो अभी हमने एक छोटा सा प्रयोग किया। आप हम में से बहुत से लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे गुलाब के फूल को। तो बुद्धि के द्वारा हमने विजुलाइज किया। बुद्धि के द्वारा हमने उस गुलाब के फूल के पंखड़ियों के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स, शबनम की वो बूंदें देखी। और मन के द्वारा हम महसूस करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसी होती है गुलाब के फूल की खुशबू। तो हम और साथ में जब मैंने कहा कि वो जो इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, तो तुरंत उसकी छवि जो है हमारे स्मृति पटल पर आ गई होगी, उसकी इमेज हमारे इंटेलेक्ट पर आ गई। और मैंने कहा कि बड़े प्यार से वो हमें गुलाब का फूल दे रहा है मुस्कुराते हुए, तो उसकी मुस्कुराहट के साथ हमारे दिल के अंदर भी वह स्नेह की भावना जागृत हो गई। तो हमारा मन और बुद्धि दोनों एक साथ कार्य कर रहे थे। इसका मतलब वी वर कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन इज। और सराउंडिंग में क्या चल रहा था, पीछे क्या आवाज है, हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हम पूर्णतः मन और बुद्धि, जो ध्यान करने वाली दो शक्तियां हैं, वह एकाग्र थी। दे वर कॉन्सेंट्रेटेड। दिस इज व्हाट अ कॉन्सेंट्रेशन इज। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को हमें बढ़ाना है डे बाय डे। और ये कॉन्सेंट्रेशन एक टूल है। पतंजलि के भी योग दर्शन में आता है, इसे धारणा कहा गया। कॉन्सेंट्रेशन के लिए वहां पे अलग वर्ड यूज किया गया, धारणा, जिसे धारण किया जाए, होल्ड किया जाए। तो माइंड को और बुद्धि को हमने गुलाब के पुष्प और उस व्यक्ति तक होल्ड करके रखा। इसका मतलब हमारा ध्यान कहीं न कॉन्सेंट्रेशन वहां पे लगा हुआ था। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो आज मेरे कहने पर आपने 3-4 मिनट माइंड को फोकस करा दिया। सोचिए कि अगर डेली ऐसे ही अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा पे निश्चित करके कंसंट्रेट कराया जाए, आज 10 मिनट, फिर 15 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, और करते करते कुछ टाइम के बाद वो संस्कार बन जाएगा। एंड इट विल बी ऑन ऑटो पायलट मोड। हमें ध्यान में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो हमें संघर्ष करना पड़ता है। एफर्टलेस एफर्ट, बिकॉज इट विल बी इन ऑटो पायलट मोड। जैसे मैं अक्सर करके एग्जाम्पल ऐसे दिया करता हूं कि माताओं को रोना कितना जल्दी आता है। अक्सर करके बहनों या माताओं को बहुत जल्दी रोना आ जाता है। कुछ बात होती है तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आंखों से झरझर करके पानी आने लगता है। तो उनसे क्या उन्होंने कहीं ट्रेनिंग ली थी कोई इंस्टीट्यूट में, कैसे रोया जाए, हाउ टू क्राई? कहाँ से ये ट्रेनिंग ली थी? पर इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि एक हमने थॉट का स्विच दबाया और तुरंत आंखों में पानी आ गया। वाई? बिकॉज इट हैज बिकम ऑटो पायलट। थोड़ा सा संकल्प दिया, तुरंत आंखें भर आई। तो जब एक छोटे से संस्कार को हम इतना ऑटोमेटेड कर सकते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन को भी हम ऑटोमेशन मोड पे क्यों नहीं ला सकते हैं? तो इसके लिए हम जो है, ये पहला पार्ट हमारा यही होता है राजयोग का, अपने आप को आत्मा निश्चय करना। और इसीलिए हम किसी को भी देखते हैं तो उसके मस्तक के बीच में, योगी इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। गीता में भी कहा गया है चेतना या प्राण को अपने मस्तिष्क के बीच में केंद्रित किया जाए, है ना। हमारे सारे इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स ब्रेन से ही शुरू होते हैं, एंड स्पेशली near the center of the hypothalamus, and that's why even we believe that the consciousness or the soul resides somewhere near the center of the hypothalamus. तो हम किसी को भी देखें तो उसके शरीर को ना देखकर उसके वास्तविक फॉर्म को देखें, जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये पहली स्टेज होती है योग की। तो अभी हम योग करने वाले हैं। उसके पहले हमें केवल संकल्पों का ज्ञान हो, और तब जाके हम उस योग के विषय में हम प्रैक्टिकल अभी शुरू करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरे दिन में देखा जाता है तो हम कितने थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। रफली अराउंड 50 to 60,000 थॉट्स पर डे। इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कई 60-70,000, कई 50 to 40,000 थॉट्स पर डे करते हैं। और उन थॉट्स की कैटेगरी केवल 4 ही होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमन एंड वेस्टफुल। पॉजिटिव थॉट्स ऑलरेडी वी आर अवेयर ऑफ, बट उसमें थोड़ा सा मैं क्लियरिटी देने, एक मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्लियरिटी देखना जानना बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव थॉट्स में दो टाइप के थॉट्स होते हैं आमतौर पे। एक होते हैं जो हमें मोटिवेशनल थॉट्स, या दूसरे होते हैं गुड विशेस वाले थॉट्स, उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो, मैं कमजोर नहीं हूं, यस आई कैन डू इट, मोटिवेशनल थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में इरिटेशन, अटैचमेंट, फियर, कोरोना है तो पता नहीं क्या होगा मेरे जॉब का, घबराहट हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। नॉट ओनली दिस, इवन द डिप्रेसिव थॉट्स कम्स अंडर नेगेटिव थॉट्स। इसके बाद हमें कैसे फील होता है? लो फील होता है, डिस्टर्ब फील होता है। पॉजिटिव थॉट्स के बाद हमें गुड या मोटिवेटेड फील होता है। दीज आर द थिंग्स, सिम्टम्स through which you can analyze whether you are in a positive state of mind or negative state of mind. So rather than doing that, you just see or check the state of mind that you are carrying. Are you feeling good and motivated? That means positive. Am I feeling disturbed and low? That means negative. Then there are common day-to-day thoughts which we call it as common thoughts. और चौथा most important है wasteful thoughts. पूरे दिन हम न्यूज पे बैठ जाएं, कोरोना के पेशेंट्स की काउंटिंग चालू कर दें, आप जानते हैं हमें कैसा फील होता है। वी फील लो एंड पावरलेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ वेस्टफुल थॉट्स। एंड वेस्टफुल थॉट्स की दो ही दुनिया होती है, पास्ट या तो फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना, पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, और पास्ट मतलब जो जो हमारे माइंड पे घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में चिंतन रखना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ थॉट्स दैट वी कैरी। और सबसे ज्यादा हमारा दिन में थॉट्स क्या चलता है? वेस्टफुल थॉट्स। इट्स नॉट एवरी टाइम वी आर नेगेटिव, ऐसे नहीं है, पर सबसे ज्यादा अननेसेसरी डे ड्रीमिंग, फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता, पास्ट की सारी जो सप्रेशंस की जो सारी बातें, जिन जिन लोगों ने हमें दुख दिया है उनको याद स्मरण कर करके रोना। These are the category of thoughts that we carry. So योगा में हम क्या करते हैं? पॉजिटिव थॉट्स हमारा रहता है। थॉट इज अ टूल थ्रू विच we try to connect the supreme. Otherwise पूरे दिन देखिए हमारा मन क्या करता है? अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करता रहता है। एवरी छोटी छोटी स्टोरीज मतलब कहीं ना कहीं हम डूब जाते हैं ख्यालों में, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है, और सामने वाले कहता है कि भाई तुम कहाँ पे थे। that is what the state of mind nowadays. So let's try to focus, और हम वो शुरू करते हैं कैसे हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल जो है डेमो हम देखेंगे। आई होप एवरीबडी इज रेडी। मैं आप सभी को थॉट्स देने वाला हूं। राज योगा के दो प्रोसेस होते हैं। राज अगेन मैं डिफाइन करूंगा, राज योगा इज अ 2-stage प्रोसेस। स्टेज 1, कंसिडरिंग योर सेल्फ एज अ सोल। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, अपने आप को ऐसा कुछ विजुअलाइज करना। सामने जो चित्र दिख रहा है, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, मैं आत्मा बॉडी से अलग हूं। तो अभी मैं कुछ थॉट्स आपको देने वाला हूं। हमें फील करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग हूं, ये हाथ पैर मेरे नहीं हैं, और हम आत्मा के अंदर ही शांति है। इसीलिए हम ब्रह्मा कुमारीज में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं बड़े प्यार से? ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो हम बॉडी से डिटैच होंगे और शांति अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ये एक ही स्टेप कराऊंगा। दूसरा स्टेप होता है परमात्मा का परिचय। अब परमात्मा क्या है? हाउ डू आई बिलीव वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट? इज इट अ रियलिटी और इज इट अ इल्यूशन? अगर उसकी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमारे लिए 4 डेज का कोर्स है जो आयोजित किया गया है। बहन इसके बारे में भी आपको डिटेल्स बताएंगी, वो डिटेलिंग कर सकते हैं। आज मैं केवल आपको फर्स्ट स्टेज का एक एक्सपीरियंस कराता हूं, गेटिंग डिटैच फ्रॉम द बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल्स। हम प्रैक्टिकल्स के लिए शुरू हो जाते हैं। तो एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए, बी रिलैक्स्ड। जो भी आपके हाथ में सामान है साइड में रख सकते हैं, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। चश्मे की जरूरत नहीं है तो निकाल भी सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इफ इट इज नॉट नीडेड आप उतार सकते हैं, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। यूं तो राजयोग में आंखें खोल करके बैठा जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अच्छी अनुभूति के लिए आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद भी कर सकते हैं। इट्स बेटर यू कैन क्लोज योर आईज। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए और कोशिश करें कि कमरे में, अभी मैं 20 मिनट्स के आसपास तक मैं आपको थॉट्स दूंगा। जैसे मैं थॉट्स दूंगा वैसे हमें फील करना है। मोबाइल हमारा साइलेंस मोड पर हो ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। कमरे में कोई बार बार आओ जाओ ना करे, इसका भी हम ध्यान में रखें। और एकदम रिलैक्स होके आंखें बंद, और हमारा पूरा ध्यान कुछ समय के लिए श्वासों पर।
जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ फॉर सम टाइम। केवल हमारा ध्यान श्वासों पर हो। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें और पूरा ध्यान, और कोशिश करना है कि बॉडी को बार बार हिलाना नहीं है। इस 20 मिनट्स में बॉडी को बार बार हिलाना नहीं है, ये ध्यान रखें। और पूरा ध्यान अभी हम श्वासों पर फोकस करेंगे। श्वासों पर और जैसे जैसे हमारा ध्यान श्वासों पे जा रहा है, बॉडी भी एकदम रिलैक्स होती जा रही है। एकदम रिलैक्स। आंखें बंद हैं और जस्ट महसूस करें हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमें देख नहीं रहा है, बिल्कुल अकेले, सर्वत्र अंधेरा, एकदम शांति। महसूस करें। हमारा ध्यान श्वासों की तरफ। श्वासों की तरफ ध्यान देते ही मन धीरे धीरे शांत भी हो रहा है। लेकिन श्वासों को देखने वाला कौन है? हु इज द ऑब्जर्वर? इन श्वासों को देखने वाली शक्ति कौन? हु इज द नोअर? कौन है जो इन श्वासों को जानता है या देख रहा है? मैं आत्मा, एक चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में। आई एम अ शाइनिंग स्टार, प्योर वाइट शाइनिंग स्टार। प्योर एनर्जी मस्तक के बीच में। अब मैं अपना ध्यान दोनों हाथों की तरफ ले जाऊंगा और जैसे ही दोनों हाथों की तरफ ध्यान जाएगा, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स्ड। और मेरा ध्यान दोनों हाथों की तरफ, और दोनों हाथ एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, शांत, शिथिल होते जा रहे हैं। महसूस करें
हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स, हाथ को स्थिर रखना है एकदम। महसूस करें हाथों की उंगलियां एकदम स्थिर। गीता में कहे हुए महावाक्य के अनुसार अब मैं अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे पूरी बॉडी से वाइंड अप करूंगा। और मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे हाथों की उंगलियां धीरे धीरे एकदम शांत होती जा रही हैं, एकदम रिलैक्स। हाथों में उंगलियां होते भी, स्थूल हाथों में उंगलियां होते भी उंगलियां ना होने का आभास हो रहा है, क्योंकि मैं आत्मा इस चेतना को उंगलियों से समेट रही हूं। महसूस करें। धीरे धीरे हाथ के ऊपरी हिस्से भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं और मैं आत्मा चेतना को उनसे समेट रही हूं। पंखे की हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, इसको महसूस करें। महसूस करने का प्रयास करें। जस्ट फील दैट। हवा हाथों को स्पर्श कर रही है, उस स्पर्श को अनुभव करने का, फील करने का प्रयास करें। अगर हमें स्पर्श की महसूसता हो रही है, अर्थात अब तक हमने चेतना को वहां से समेटा नहीं है। इसलिए चेतना को इन हाथों से भी समेटना है। मुझे यह धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि मेरे दोनों हाथ एकदम सुन्न होते जा रहे हैं, एकदम सुन्न। कोई हलचल नहीं, एकदम सुन्न। अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ, और जैसे ही मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ जाएगा, दोनों पैर भी एकदम रिलैक्स होने लगेंगे। मस्तक के बीच में मैं चमकता हुआ सितारा, और अब मेरा ध्यान दोनों पैरों की तरफ। दोनों पैर एकदम रिलैक्स्ड। महसूस करें, एकदम रिलैक्स्ड, एकदम स्थिर। पैरों की उंगलियां भी एकदम स्थिर। महसूस करें धीरे धीरे जैसे पैरों की उंगलियां एकदम सुन्न होती जा रही हैं, क्योंकि मैं चेतना को पैरों से भी समेटने वाला हूं।
पैरों की उंगलियां धीरे धीरे सुन्न होती जा रही हैं। पैरों के तालू भी एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं। क्रमशः धीरे धीरे पैर के एक एक हिस्से सुन्न होते जा रहे हैं और मैं घुटने तक पहुंच जाता हूं। पैरों की उंगलियों से लेके घुटने तक का हिस्सा जैसे एकदम सुन्न हो चुका है, महसूस करें। एकदम रिलैक्स, एकदम सुन्न। घुटने के से भी धीरे धीरे सुन्न होते जा रहे हैं। घुटने के ऊपर के हिस्से भी महसूस करें, एकदम जैसे कि सुन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा चेतना को समेट रही हूं। जैसे जैसे मैं चेतना को समेट रहा हूं, मेरा मन एकदम शांति का अनुभव कर रहा है। एकदम रिलैक्स होते जा रहा है। एकदम गहन शांति। कमर भी एकदम रिलैक्स्ड महसूस करें। कमर के हिस्से से भी चेतना समेटना है। कमर भी एकदम रिलैक्स, किसी प्रकार का भी तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। कमर के आसपास के भी हिस्से एकदम रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स महसूस करें। क्रमशः एकदम धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, इसलिए रीढ़ की हड्डी भी एकदम रिलैक्स। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स। कंधे एकदम ढीले रखें, किसी प्रकार का तनाव नहीं। मैं तो आत्मा मस्तक के बीच में हूं, तो मैंने कंधों को पकड़ के क्यों रखा है? कंधों पे ग्रिप अर्थात चेतना को मैंने समेटा नहीं है। कंधों को एकदम लूज। इस ग्रिप को छोड़ते ही शांति का अनुभव हो रहा है। बेवजह हमने इसको पकड़ के रखा है। गला भी एकदम रिलैक्स और पीठ भी एकदम रिलैक्स। पीठ एकदम रिलैक्स महसूस करें, एकदम हल्की, एकदम रिलैक्स।
गला भी एकदम रिलैक्स, चेहरा भी एकदम रिलैक्स महसूस करें, चेहरा एकदम रिलैक्स शांत, क्योंकि मुझे शांति का अनुभव हो रहा है इसलिए मेरा चेहरा भी एकदम शांत। आईब्रोज एकदम रिलैक्स, आंखों की पलकें भी एकदम रिलैक्स महसूस करें, आंखों की पलकें एकदम रिलैक्स्ड हैं, कोई तनाव नहीं, एकदम रिलैक्स। दोनों गाल एकदम रिलैक्स, हवा उन्हें स्पर्श कर रही है उसे महसूस करें, हवा उन्हें स्पर्श कर रही है। और अगर मुझे स्पर्श का अनुभव हो रहा है अर्थात चेतना को मैंने समेटा नहीं है, मुझे यहां से भी चेतना को समेटना है। होठ एकदम रिलैक्स, दोनों जबड़े या जॉज एकदम रिलैक्स, यहां पे भी तनाव ना हो, जैसे दोनों दांतों की श्रृंखला के बीच में हल्का सा गैप। अब मेरा ध्यान आंखों के पीछे और मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि आत्मा के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूं। आई एम अ वाइट शाइनिंग स्टार, शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फॉरहेड। और मेरा मन एकदम शांत हो चुका है। मैंने चेतना को पूरे शरीर से समेट लिया है और पूरी चेतना केवल मस्तक के बीच में एकाग्र है। और समेटने और इस त्याग से, चेतना के इस समेटने से, इस त्याग से मुझे कितने शांति अनुभव हो रही है। क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। आई एम नॉट दिस बॉडी। ये बॉडी तो प्रभु की अमानत है, ईश्वर की अमानत है, जो मुझे सेवा अर्थ मिली है। लेकिन मैंने अपने अस्तित्व को पूरे शरीर में जैसे फैला दिया है। नाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी। अब मैं 1 से लेकर 5 तक गिनती गिनूंगा। जैसे जैसे गिनती बढ़ती जाएगी मुझ आत्मा के अंदर निहित शांति बाहर आती जाएगी और मेरा मन एकदम शांत होते जाएगा। आई विल स्टार्ट द काउंट। जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा अंदर की शांति को और गहराई से अनुभव करना है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, मैं स्वयं ही स्वयं शांत स्वरूप हूं। 1, मेरा मन एकदम शांत होते जा रहा है। जैसे ही मैंने 1 कहा मेरा मन एकदम शांत। 2, और भी शांत महसूस करें, एकदम शांत।
3 और भी शांति, एकदम शांति गहरी होती जा रही है, एकदम रिलैक्स। 4 कंप्लीट साइलेंस, एकदम गहरी शांति, सन्नाटा। इस सन्नाटे को फील करें। 5 एक्सट्रीम पीस। मेरा मन पूर्णतः शांत हो चुका है, एकदम गहन शांति। जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मेरे पिता भी मेरी तरह एक आत्मा है, परमात्मा है। वे शांति के सागर हैं। उस परम पिता को मैं धन्यवाद देती हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस स्वरूप में स्थित होकर वह परमात्मा जो मेरी तरह ही एक ज्योति है, उस पर ध्यान केंद्रित कर इस शांति की अनुभूति को और भी गहरे और भी गहराइयों में ले जाऊंगे। हमारी आंखें बंद हैं, बॉडी पूरी रिलैक्स है। महसूस करें शरीर पूरा रिलैक्स और मन एकदम शांत। अब एकदम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी, एकदम धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे खोल सकें और भी अच्छा। और कुछ मिनट उसी अवस्था को बनाए रखना है, जरा भी हिलना नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो इस प्रकार इस अनुभूति को बढ़ाए रखने के लिए 7 डेज का जो है कोर्स आयोजित किया गया है और हम इसका लाभ भी ले सकते हैं। इसका हम लाभ भी ले सकते हैं इस कोर्स का, जो आगे 7 डेज के बदले केवल 4 दिन में जो है रखा गया है। इसका विवरण जो है और इसकी अनुभूतियाँ जो हैं आगे जो है बहन आपको शेयर करेंगी, सुनाएंगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रयास किया होगा। तो सुबह और शाम जब भी आपको टाइम मिले इस अनुभूति पे जोर दें, क्योंकि योग केवल चर्चा का विषय नहीं, योग तो अनुभूति का विषय है। ओम शांति। On practical meditation. Thanks, brother, and I hope participants must have really enjoyed this session
on the practical front. Thanks, brother, for a beautiful divine session of this Raj Yoga session. Thank you. And I think this meditation should not be just practiced when Rajiv Bhai Ji is taking the session, but I think it should be done when even otherwise contrary on the daily front. Make it a ritual in your daily life. That's what I would suggest the participants. And Rajiv has got that speciality that it channelizes your thoughts in the right direction, and it teaches you what type of thoughts you need to think and when you need to think, and what should be the quality of the thoughts. जो राजीव भाई जी ने आपको पॉजिटिव नेगेटिव वेस्टफुल थॉट्स के हिसाब से समझाया था. एक्चुअली देखा जाए तो डेज का हमने एक कल्चर बना लिया है लाइफ में. वी सेलिब्रेट लाइक it's like a Western culture. We celebrate Father's Day, Mother's Day, तो इंटरनेशनल योगा डे. डेज क्यों सेलिब्रेट करना पड़ रहा है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमें रेगुलर रूटीन में वो हम नहीं कर पाते, इसीलिए डेज सेलिब्रेट करते हैं. हालांकि ऐसा होना चाहिए, योगा शुड बी अ रेगुलर रूटीन इन योर लाइफ, अ डेली रिचुअल इन योर लाइफ. फॉरेन में होता है कि फादर और मदर के से अलग रहते हैं, तब वो फादर्स डे, सिस्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. बट I hope those cultures should be taken positively and should not be just celebrated for a day, but it should be celebrated throughout the year. And Raj Yoga meditation has got a speciality जो आपको ये सिखाता है. यहाँ पे हमें रोज ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हमें मेडिटेशन को a part and parcel of your life बनाना है. कैसे God should not be just occasional or when you need him, but God should be a main ingredient and part and parcel of your life. And that is the reason I request all the participants here to definitely, if you all are newcomers or new joinees today, do attend the 7 days or 3 days course on meditation, and which you can take the details in the end. In the chat, we will just share all the details regarding the Raj Yoga meditation course, which is newly going to begin. Now we have in our midst Sister Sangeeta. She is the head of GK2 Center in Brahma Kumaris, which is a branch of City Fourth Center, New Delhi. And she is into this. Welcome, sister. A very hearty welcome to you. And she's in this, she's been practicing Raj Yoga meditation since past 40 years. And she's got this rich experience, a beautiful experience of sharing her meditation, practical experiences with us. Just to, in short, I'll describe her profile to you. She has completed her B.Pharm, and she was a business consultant and an arbitrator to many of the companies before she joined Raj Yoga meditation. She had also been a business consultant to many family-owned businesses as well. She is a Raj Yoga teacher since past 40 years. She is also the regional coordinator of the aviation and the railways of the Delhi chapter. And she has been conducting stress management lifestyle, how Raj Yoga can be a healthy lifestyle, all these workshops in many big shot corporations, wherein she was official management faculty to the Air India on all India level. She has also given the godly service on to IOCs, to the Ministry of Railways, and many more. So I would like to welcome. She is also represented to the aviation and the, I would say, railway wings of Brahma Kumaris for both national and international conferences on varied subjects and in varied capacities from time to time. So today, Sister Sangeeta, she will actually take you to the world wherein she will teach you the self-mastery. कैसे हमें अपने आप पर मास्टरी प्राप्त करनी है, कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल पर मास्टरी प्राप्त करनी है, और कैसे हम अपने गुणों और शक्तियों पर मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं. So I would like to once again welcome Sister Sangeeta to share her beautiful experiences, elevated experiences
to all the participants here. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti. Good morning and बहुत इंटरनेशनल योगा डे की वार्म ग्रीटिंग्स। हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डे उस तरह से है और प्लस आज हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन है आज के दिन का। सोलर एक्लिप्स भी है तो हम उस तरह से रिलेटिवली फ्री है, किसी से मिलना जुलना उस तरह से नहीं है चल रहा है। तो परमात्मा ने आज का ऐसा समय दिया है जो उसी को याद करने का बहुत अच्छा मौका है। वैसे भी जब ग्रहण होता है तो हम कहते हैं कि भगवान को याद करो, अच्छे काम करो, बिकॉज और कुछ तो कर नहीं सकते, नॉट अलाउड। एंड सेकेंडली योगा डे है तो योग के बारे में तो हम सीखते ही हैं। तो अब इतना अच्छा मौका है। और तीसरा थर्ड इज द lockdown is still going on. So we'll just have to remind ourselves such a unique yoga day. I think so in the last 6 years since 2014 which we are 2015 which we are celebrating, we have not come across. So what exactly is this yoga day? Because if we see the benefits of this present circumstance, the combination of all the circumstance जो हो गया है, कि अगर हम अपने आप को पूछे कितना बेनिफिट है इस पीरियड का, ऐसे कोई कितने दिन हमें याद है जब हमने फैमिली के साथ तीनों टाइम इकट्ठे और बहुत दिनों तक खाना खाया हो। हमको अपने जीवन में ऐसा कभी वो दिन याद आता है कि 2 महीने हम फैमिली के साथ इकट्ठे खाना खाए और वो भी तीनों टाइम। ऊपर से तीनों टाइम हमने केवल घर का भोजन खाया हो, बाहर का भोजन नहीं खाया हो। ऐसा कोई दिन याद आता है भी बहुत दिनों तक। तो इनफैक्ट जो भी समय आता है उसमें जो भी डिसएडवांटेज होता है वो ठीक है, लेकिन एडवांटेज हम सोचे तो बहुत है। इतना इकट्ठा हमें फैमिली के साथ मिलने का मौका शायद इसके पहले नहीं उतना मिला होगा। तो न खाना खाने का मौका मिला। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी एग्रीइंग अबाउट इट। और भोजन वो भी सात्विक, घर का बनाया हुआ, शांति से बनाया हुआ, एंड वो भी नॉट इवन मेड के हाथों का भोजन, स्वयं के बनाया हुआ सात्विक भोजन। तो इसलिए ये आज जो हम योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फीलिंग्स। बिकॉज व्हेन वी से योगा, योगा मीन्स कनेक्शन। योगा का संस्कृत मीनिंग युज है, युज का मतलब है कनेक्शन। तो योगा मीन्स कनेक्शन। नाउ कनेक्शन किसका किसके साथ, तो वो हम थोड़ा समझेंगे कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले कनेक्शन ऑफ द सेल्फ। योगा मतलब स्वयं का, स्वयं के थॉट्स के साथ कनेक्शन। जैसे हम लोग बहुत बार वी आर डिसकनेक्टेड विथ मेनी थिंग्स। हम कहते पता नहीं, वी आर नॉट सो मच कनेक्टेड। तो वी आर स्टेइंग टुगेदर बट वी फील वी आर नॉट कनेक्टेड। तो व्हेन वी आर स्टेइंग टुगेदर एंड नॉट कनेक्टेड मीन्स व्हाट? जुड़े हुए नहीं है। तो कितनी बार होता है व्हेन डू वी से वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर? व्हेन जो मैंने कहा आपने माना, आपने कहा मैंने माना, देन वी से हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है। दिस इज व्हाट वी से। तो इसका मतलब योगा मीन्स कनेक्शन ऑफ द थॉट्स, ऑफ माय थॉट्स, एंड मेरा थॉट्स कनेक्शन इज से फीलिंग्स से कनेक्टेड है। हाउ आई फील इज बेस्ड ऑन हाउ आई थिंक। So therefore, connection of my thoughts with the feelings. Second, yoga is connection of my thoughts with the body.
connection of my thoughts on my body, क्योंकि संकल्पों का फीलिंग्स पे असर होता है, संकल्पों का थॉट्स बॉडी पे असर होता है. We know विचारों का कितना गहरा असर है. और कनेक्शन ऑफ द थॉट्स ऑन माय रिलेशनशिप्स, तो जैसा हम सोचते हैं उसी तरह के हमारे संबंध के आपसी व्यवहार चलते हैं. तो रिलेशनशिप्स के साथ के अकॉर्डिंग भी जो हमारा कनेक्शन है, बिकॉज ऑफ द वे आई फील, द वे आई थिंक, एंड देयरफॉर फाइनल इज जो मैं, जैसा मेरा संबंध, जैसा मेरा विचार है और जैसे मेरा संबंध है वैसा ही. ओके, I think so now everyone is able to see the PPT. So yoga means connection of my thoughts on how I feel on my body, और दूसरा बाद में है रिलेशनशिप, और नेक्स्ट है जैसा मेरा संबंध है वैसा मेरा आपस एनवायरनमेंट है. सी व्हाट आई फील, व्हाट आई थिंक, वैसा ही वातावरण बनता है, वैसा ही एटमॉस्फेयर बनता है. हम लोग कोई डेथ के ऐसी जगह में जाते हैं, वहाँ सब शांत है, कोई कुछ गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बट द एटमॉस्फेयर इज वेरी हैवी. तो व्हाट इज दैट हैवीनेस? सो इट्स द कनेक्शन ऑफ द थॉट्स ऑन द एनवायरनमेंट. तो योगा इज दिस कनेक्शन, माय कनेक्शन विथ the whole environment in this manner. तो आज हम देखते हैं हमारी भावनाएं बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. जैसे ही किसी ने कुछ ऐसा किया, there are many other things very good in my life and there are some things which are not so good in my life. मेरी भावनाएं बहुत जल्दी चेंज हो जाती है किसी भी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उसने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया. तो connection of my thoughts and the connection of the thoughts and the feelings. तो इस कनेक्शन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. देन ओनली हम मास्टरी कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम जो सोच रहे हैं और जो हम फील कर रहे हैं, फाइनली वही मेरे एटीट्यूड बनाता है. जैसी मेरी भावना है, आपके प्रति मेरी भावना इतनी अच्छी नहीं है, तो जैसे ही आप आएंगे, मुझे एक एटीट्यूड बन गया कि जो अंकल्स होते हैं, सपोज यू आर माय अंकल और यू आर माय भतीजा, मुझे ये फील हो जाएगा कि भतीजे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, उनसे ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरी फीलिंग्स बेस्ड ऑन माय थॉट्स and the based on what I conclude in a situation. So what I think is connected to what I feel, is connected to how I act. So now yoga means, therefore connection, in सब का connection हमारा तब अच्छा रहेगा जब हमारा connection of myself with the supreme बहुत अच्छा होगा. अगर ये चारों कनेक्शन को हमको अच्छा करना है तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जितना अच्छा होगा उतना हमारा ये चारों कनेक्शन बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे. तो देयरफॉर योगा मीन्स सेल्फ मास्टरी. बहुत बार हम सोचते हैं, हमने देखा हुआ होगा कि पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बोल देता हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, कर लेता हूँ. हमने देखा है अपने आप को कहते हुए, याद होता है. और बहुत बार कहते हैं मुझे खाना नहीं चाहिए पर पता नहीं कैसे मुझे मन चल जाता है और मैं खा लेता हूँ. इसका मतलब देयर इज व्हाट आई, इट्स जस्ट लाइक यू आर द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू हैव टोल्ड योर एम्प्लॉइज कि ये नहीं करना है. आपने कहा है बट स्टिल द एम्प्लॉय स्टिल डज इट. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप कहते हो there are 10 employees suppose in your team. इसको कह दिया ये करो, इसको कह दिया वो करो, इसको कह दिया ये करो, and none of them following your orders.
what kind of leader are you? Can now I have ordered my thought कि मुझे पता है कि ये सोचने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन सोचते रहते हैं. इस तरह की भावना आना. अब जैसे एक डर है, डर चल रहा है, अब मैं बार बार डर रही हूँ कहीं मुझे ऐसा तो नहीं हो जाए. वहां आई एम सीइंग अदर्स गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन एंड आई एम फियरिंग फॉर माई सेल्फ, कहीं मुझे ऐसा तो ना हो जाए. सो आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई फीलिंग्स, नो कंट्रोल ओवर माई थॉट्स, नो कंट्रोल ओवर माई माउथ. पता नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ. मैं कई बार हम जिससे नॉट सो कंफर्टेबल है, उस व्यक्ति को हमने कई बार बोल चुके होते हैं कि प्लीज आप मत करो, प्लीज आप मत करो. और फिर बोलते हैं हम ये भी कहते हैं मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बोल देता हूँ. जब मुझे पता है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हिम एंड स्टिल ही इज नॉट एग्रीइंग टू इट, ही इज नॉट फॉलोइंग इट, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए. बट देन हम ही उनको कह देते हैं कि पता नहीं मैं क्यों बोल देता हूँ, जबकि मुझे नहीं बोलना चाहिए आपको. तो इसका मतलब मुझे मेरे शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, मुझे मेरे थॉट्स पर. अच्छा, फिर हम कहते हैं खाना, कि मैं पता नहीं मन चल जाता है, खाना नहीं चाहिए, उससे मुझे मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है, पर पता नहीं जैसे ही आम देखती हूँ, आम का सीजन है, बस मन चल जाता है. तो इसका मतलब मुझे मेरे जीभ पर भी, सेंस ऑर्गन्स पे भी कंट्रोल नहीं है, आंख पर भी कंट्रोल नहीं है. नहीं देखना चाहिए, देख लेती हूँ. तो इन अ वे इट्स लाइक देयर आर 10 एम्प्लॉइज इन माय सेटअप ऑफ दिस सोल एंड एक भी एम्प्लॉय मेरा सुन नहीं रहा हो. व्हाट काइंड ऑफ लीडर एम आई हैव टू आस्क माई सेल्फ. तो इसलिए therefore योगा, this Raj Yoga is nothing but self-mastery. And what is that mastery? It's mastery over your thoughts, feelings, attitude, actions and sanskars. इन 5 बातों पर आपकी मास्टरी हो जाती है. तो अब जब यहाँ हमारी ये मास्टरी जब हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि योगा, दैट इज द कंप्लीट मास्टरी. इट्स लाइक आप उस सेटअप पे हो. इट्स नॉट दैट यू आर नॉट अ रूलर, यू आर एन एम्प्लॉयर, यू हैव एम्प्लॉयड ऑल दीज पीपल, बट देन व्हेन दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, यू योरसेल्फ गेट डिस्टर्ब. आपको रहना भी उस जगह है, लेकिन कोई सुन भी नहीं रहा है आपका. ठीक इसी तरह की आज हमारी हालत हो गई है. रहना भी इसी शरीर में है ना, लेकिन मेरा न थॉट्स मेरे कंट्रोल में, न फीलिंग्स मेरे कंट्रोल में, और न एटीट्यूड और न एक्शंस मेरे कंट्रोल में. तो दिस मास्टरी इज कॉल्ड राज योगा. दिस मास्टरी इज कॉल्ड मेडिटेशन. तो जब हम ये मेडिटेशन सीखते हैं, इसलिए जब कनेक्शन, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हमने सोचा कि दूसरे पर क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि स्वयं पर नहीं है. तो व्हेन वी डू दिस मास्टरी, नाउ हाउ डू आई डू द मास्टरी ओवर दीज थिंग्स? एक सिंपल एग्जांपल है. थॉट्स पे मुझे मास्टरी करनी है. नाउ वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना, द साइंस बिहाइंड दिस थॉट्स, कि आखिर कि ये थॉट्स पे हमारी मास्टरी क्यों नहीं हो रही है. थॉट्स की शुरुआत, हाउ डू थॉट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? इफ यू जस्ट सी, थॉट्स की शुरुआत होती है, मैंने आज ये सोचना शुरू किया ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उस तरह का हमारा थॉट्स चलता है, राइट? तो थॉट्स मतलब ही इंफॉर्मेशन. तो अगर मुझे मास्टरी ओवर द थॉट्स चाहिए, तो मेरी इंफॉर्मेशन किस क्वालिटी के है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इफ टुडे माय इंफॉर्मेशन क्वालिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, इट्स फाइन. लेकिन अगर क्वांटिटी किसी की ज्यादा है, वो मेरे ऊपर ज्यादा हावी करेगा. मुझे चाहिए कि आई हैव टू कंट्रोल ओवर, आई हैव टू हैव अ कंट्रोल ओवर माय थॉट्स.
और इंफॉर्मेशन मेरा पूरा नेगेटिव है, वो इंफॉर्मेशन है जिसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। सपोज मैं इस तरह का इंफॉर्मेशन देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि उसने ऐसा किया ना, तो उसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हुई, उसके शरीर पर ये असर हुआ, उसके रिलेशंस में ऐसे प्रॉब्लम शुरू हुई। सो दीज आर द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द डे आई एम गोइंग थ्रू। तो जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा मेरा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है, वैसा मेरा थॉट्स होगा। एंड देन ऑब्वियसली आई एम स्टडिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम फोकसिंग, आई एम जस्ट अवेयर ऑफ दोज इंसिडेंट्स मोस्टली विच आर आउट ऑफ कंट्रोल वाला। तो मेरा थॉट्स भी क्या होगा, इट विल बी सर्टेनली आउट ऑफ कंट्रोल। इसलिए द सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट if I need to have the mastery. Second, suppose I have both the kind of information, but exercising the choices, जैसे आपके सामने अच्छा कपड़ा भी रखा है, बुरा कपड़ा, मतलब एक सिंपल कपड़ा भी है और एक खराब क्वालिटी भी है। वो नहीं होता है हम हॉकर्स के पास जाते हैं, वो एप्पल बताता है 3 तरह के एप्पल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक सड़े वाले भी एप्पल है। तो what would you choose? आपके पास तीनों चीजें हैं, लेकिन your choice would depend upon your budget और your interest। तो मेरे पास अच्छी भी इंफॉर्मेशन है, रॉन्ग भी इंफॉर्मेशन है, बट आई हैव टू एक्सरसाइज माई चॉइस। मुझे सुनना भी है, ऐसा भी नहीं है आई कैन बी अवे फ्रॉम ऑल द इंफॉर्मेशन। आई हैव टू लिसन टू ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बट कैन आई एक्सरसाइज माई चॉइस ओवर द इंफॉर्मेशन? तो इसलिए चाहे हमको सुनना पड़े, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव भी हो, और फिर वो जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है उस पे हम अपनी चॉइस एक्सरसाइज करें। हम सोचे पता नहीं मुझे क्या करूं, मैं सारा समय इसी माहौल में रहती हूँ, इट्स ओके, बट स्टिल देयर इज अ चॉइस। अगर थोड़े से भी एप्पल है अच्छी क्वालिटी के है और ज्यादा एप्पल अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आप बहुत रॉयल हो, व्हाट वुड यू स्टिल चूज? ये नहीं कहेंगे ना इतने से ही थे, मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन जितने हैं यू विल चूज दैट क्वालिटी ओनली बिकॉज दैट इज योर चॉइस। सो इवन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी होती है पूरे दिन में, हो सकता है नेगेटिव ज्यादा है पूरे दिन में, बट स्टिल आई कैन फोकस ऑन दिस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। Now, how to get that positive information will be coming to that point. So, exercising the choices in the type of the information, understanding that information, and then putting into action. This will make your belief. जितना हम जिस तरह के इंफॉर्मेशन हम एक्शंस में लाते जाते, वो मेरा बिलीफ बन जाता है। अब जैसे अगर मैं बार बार क्रोध करती जाती हूँ, जैसे किसी ने मेरे अकॉर्डिंग नहीं किया, मेरा नेचर है एकदम क्रोध कर लेना। तो जब मेरा नेचर है क्रोध करना, इट्स लाइक आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट, इट विल जस्ट बिकम माई बिलीफ कि नहीं, बिना क्रोध किए ना काम होता ही नहीं है। तो एज इज माई इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक्शंस, इट विल बिकम माई बिलीफ। तो अगर मुझे अपने बिलीव्स को चेंज करना है, मुझे बिलीव्स के ऊपर मास्टरी चाहिए, आई हैव टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव टू गो थ्रू। तो इसलिए दिस इज देयरफॉर मेडिटेशन का मतलब है योर मास्टरी ओवर द थॉट्स, और उसके लिए मास्टरी ओवर द चॉइस। अगर मुझे थोड़ा सा ही मिलता है नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं उसी पर वही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पर मास्टरी करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा उसको सुनना। सो देयरफॉर देन जैसे मेरे थॉट्स होंगे वैसे मेरी फीलिंग्स होगी, एंड वाइसा वर्सा, जैसे फीलिंग्स होगी। अगर आप बहुत डिप्रेस फील करते हो, आपके विचार भी जो चलेंगे वो कैसे चलेंगे? जैसे फीलिंग्स वैसे आपके विचार चलते हैं। अब जैसे अब देखो, अभी हम लोग जिस सिचुएशन में वी ऑल आर गोइंग थ्रू, हम चारों तरफ ऐसा माहौल देख रहे हैं, हमारे अंदर डर की फीलिंग शुरू हो जाती है। अब जैसी डर की फीलिंग शुरू हो जाती है तो मेरे विचार भी कैसे आते हैं? डर लगने लगता है। डर इज अ फीलिंग,
द क्वालिटी ऑफ थॉट, क्या मेरे विचार चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत शक, बहुत वहम, और ऑलवेज दूसरे, मतलब जैसे मुझे वहम ही वहम है हर चीज में, यहाँ भी प्रॉब्लम, यहाँ भी, मतलब ऑलवेज आई एम इन डाउट. इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव टू टेक केयर इन दिस करंट सिनेरियो, लेकिन एक वहम की ही मेरी दृष्टि चलती रहे, वहम के थॉट्स, वहम की भावना और वैसी थॉट्स. तो जैसे मेरे फीलिंग्स वैसे मेरे थॉट्स चलेंगे, और दिस थॉट्स will become my experience. So my past experiences, beliefs, it's an interconnection. मेरे past experiences, belief and information become my thoughts and these become my feelings. तो इसलिए जिस तरह का information वैसा मेरा feelings. अगर आज मेरे feelings बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और जो हो रहा है मेरा नेगेटिव ही हो रहा है, तो समवेयर इट इज नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन विच इज टू बी ब्लेम्ड ऑफ, बट माई फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज गोइंग ऑन. मेरा फोकस कितना है. शायद यही लॉकडाउन का पीरियड कईयों ने, हम में से बहुतों ने ऐसे भी उसको इतना बेस्ट यूज किया कि वो एक यादगार रह गया कि ऐसा समय कभी आने वाला नहीं था. दे did so much of that positive feelings, exercise, actions or spiritual homework. So therefore it is this kind. And then now to have this kind of mera thoughts and the feelings, what is the beautiful method? Yoga, this is called self mastery and this is called yoga. तो इसलिए योगा कोई 4 घंटे का नहीं होता है. हमने सोचा योगा मतलब 1 घंटा योगा करना, योगा मतलब 1 घंटा चुपचाप से बैठ जाना. तो ये 1 घंटे का योग नहीं है, ये है लाइफस्टाइल. क्योंकि फीलिंग्स हम चाहते हैं कि 1 घंटा मेरी फीलिंग अच्छी हो और बाकी 23 आवर्स ऐसा चलता रहे. 1 घंटा मेरे संस्कार अच्छे हो, फिर बाद में चलता रहे. डू वी एग्री टू दिस? तो इसका मतलब योगा इज शुड बी अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट 1 hour. नाउ व्हाट इज दैट योगा इन माय लाइफस्टाइल? एक शॉर्ट में वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले योगा मतलब सबसे अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन. सबसे पहला जो कनेक्शन है अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन. सुबह सुबह आपने परमात्मा के साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा बिताया. वैसे भी हम क्या कहते हैं कि क्या है सुबह सुबह पता नहीं मैंने किसका मुंह देख लिया. एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग तो हमारा मुंह अच्छा दिखे, हम ये तक चाहते हैं ना. तो व्हाई नॉट, अच्छा ही क्यों, बेस्ट पर्सन उसके साथ हम पहला अपना मुंह दिखाए. तो राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा लाइफस्टाइल में ब्यूटीफुल, द वेरी राइट फ्रॉम द सोर्स, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है. एंड दैट इज द अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन. It could be 4 o'clock, it could be 5 o'clock, it could be 6 o'clock, as you feel, but the very first activity of that day should be meditation. मतलब, as we saw earlier, connection with the Supreme. ये मेरा first lifestyle. तो सबसे पहले मैंने 15-20 मिनट, आधा घंटा परमात्मा के साथ बातें की, परमात्मा से चैट किया, परमात्मा की शक्ति ली. अब विद दिस पावरफुल माइंड, जैसे सुबह सुबह मैंने बहुत अच्छा मुंह देख लिया, विद दिस पावरफुल माइंड उसके बाद मेरा नेक्स्ट होता है स्पिरिचुअल स्टडी. क्योंकि कई बार इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आजकल सुबह उठते ही बाजू में क्या चलता है, मेरे पास क्या लगा पड़ा रहता है, मोबाइल. और सुबह उठते ही व्हाट्सएप के साथ कनेक्शन का मतलब मेरा बहुत डाउन, बहुत खराब मुंह मैंने देख लिया.
तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन। और अब इतनी हाई प्रोफाइल मेरा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, इतनी हाई प्रोफाइल थिंकिंग पैटर्न के बाद क्या हम फिर बातचीत में टाइम बिताए? नेक्स्ट उसलिए उसका नेक्स्ट बेस्ट है देन स्पिरिचुअल स्टडी, क्योंकि पहले मैंने परमात्मा से बात कर ली, ये सब कर लिया, फिर स्पिरिचुअल स्टडी, चाहे उसको उसके बाद प्राणायाम एक्सेट्रा। अब स्पिरिचुअल मॉर्निंग मेडिटेशन कर ली और फिर स्पिरिचुअल स्टडी की, और स्पिरिचुअल स्टडी which is we have a beautiful discourse of 40 minutes 1 hour every day in all our centers। अब मैंने वो अच्छी इंफॉर्मेशन ली और सुबह की मेरी मीटिंग परमात्मा के साथ बहुत अच्छी रही। उसके बाद अब मैं प्राणायाम करती हूँ। क्या होगा? प्राणायाम भी इट इज नॉट जस्ट ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। मैंने जो जो सुना वो मेरे अंदर गया, उसके बाद ये प्राणायाम, तो इट्स लाइक मेरा टॉक्सिन्स मेरी निकल रही है एंड मैं फ्रेश एयर फ्रेश एनर्जी अंदर ले रही हूँ। तो विद दिस पावरफुल माइंड आई डू द प्राणायाम। वास्तव में जो योगा वर्ड, पातंजलि योग दर्शन, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, योग वर्ड ही निकला, फिजिकल योगा से निकला ही नहीं था। वो योग वर्ड ही है वृत्ति निरोध, जहाँ कंप्लीट आपके सेंस ऑर्गन्स पर आपका कंट्रोल है। तो इसका मतलब अब जो मैं फिजिकल कुछ कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मेरे सेंस ऑर्गन्स, मेरे थॉट्स पे मेरे कंप्लीट कंट्रोल। तो स्पिरिचुअल स्टडी के बाद प्राणायाम और फिर राइट एक्शंस, जो भी कर्म करे, दिस इज कॉल्ड कर्म योग। मन अच्छी बातें मैंने सुनी और उस जो अच्छी बातें सुनी उसके बेसिस पे मेरे कर्म हो, इसको कहेंगे कर्म योग। अब उसके बाद भोजन भी कैसा, क्योंकि जितना भोजन सात्विक और प्योर वाइब्रेशंस, अन्न और मन तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अन्न नहीं है, अन्न का मन पर असर होता है, मन का अन्न पर असर होता है। तो जो भोजन हम खाए वो प्योर वाइब्रेशंस और सात्विक। हम जब प्राणायाम करते, योगा कहते, हम सात्विक फूड तो शायद अपना भी लेते हैं, बिकॉज ये योगा का, फिजिकल योगा का एक फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक रिक्विजिट है कि भोजन सात्विक होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में प्योर वाइब्रेशन से बना हुआ भोजन, तो वो भोजन हम लेते हैं। और उसके बाद धन का उपयोग, धन के साथ का कनेक्शन। मनी अर्निंग शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेल्फ, खुद का प्रॉफिट, लेकिन दूसरों का भी प्रॉफिट हो, मेरा भी हो, दूसरे का भी हो। और इसलिए दुआओं से भरा हुआ, दुआओं से कमाया हुआ धन, तो वो दुआएं भी लाता है, धन भी लाता है। हमने सोचा धन कमाना है तो ओनली धन, पैसा लेकर आना है, पैसे के साथ उसकी एनर्जी भी साथ में हम लेकर आते हैं। हमने अगर इस तरह की एनर्जी से धन कमा भी लिया तो वो धन के साथ हमने किसी को पुल डाउन किया, किसी को बैक बाइटिंग करके प्रमोशन ले ली, किसी के पैसे, किसी को फीस नहीं दे के वो पैसे से अपना अच्छी गाड़ी खरीद ली। ठीक है, पैसे से तो लेकर तो आ गए, गाड़ी तो लेकर आ गए, लेकिन वो धन जो था उसके पास वो एनर्जी क्या है, टेंशन की। वो दूसरा बेचारा उसके सैलरी पे हम खेल के अपनी गाड़ी लेके आ गए। तो मैं एक टेंशन प्लस मैं बद्दुआ प्लस गाड़ी लेके आई, तो वो गाड़ी प्लस बद्दुआ मेरे साथ जाएगी। वो केवल गाड़ी नहीं है, लेकिन वो साथ साथ बद्दुआ भी है। अब उस गाड़ी को मैं ड्राइव करती हूँ, वी कैन इमेजिन व्हाट रिस्क वी आर टेकिंग। हम कहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करना। हम निकलते पेरेंट्स आशीर्वाद लेकर जाते हैं, बड़ों की, भगवान को प्रणाम करके जाते, आशीर्वाद मिले।
उनके से तो हम आशीर्वाद लेते हैं और लोगों से हम दुआएं बद्दुआ लेते हैं। तो उनका आशीर्वाद और उनका बद्दुआ, उनका आशीर्वाद शायद हम एक्चुअली इतना मीन भी नहीं करते होंगे, लेकिन बद्दुआ इतनी ज्यादा है। तो इस तरह से कमाया हुआ धन, तो इसलिए योगी लाइफस्टाइल मतलब धन की भी प्योरिटी है, और साथ साथ तो जहाँ धन अच्छा हो, धन से हम अन्न खरीदते हैं, वो दुआओं से भरा हुआ धन से अन्न खरीदते हैं और वो अन्न खाते हैं, उसमें दुआएं भरी अन्न, वो अन्न हजम होता है। बहुत ज्यादा आजकल हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हम सभी ने अनुभव किया है कि पता नहीं हजम नहीं होता है खाना। क्यों? क्योंकि धन ठीक नहीं है, उस धन से कमाया हुआ अन्न ठीक, अन्न ऐसा है क्योंकि वैसा ही अन्न है, तो अन्न भी हजम होगा क्योंकि धन अच्छा है। और जब धन और अन्न अच्छा है तो मन कैसा होगा? उस ऐसा भोजन खाया हुआ मन, हम जिस तरह का भोजन खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, तो वैसा हमारा मन और फिर वैसा हमारा तन, उसी तरह से हमारा तन बनता है। तो धन से अन्न, अन्न से मन और मन से तन। तो ये तन जो हेल्दी होगा वो हमारे लिए, हम प्राणा, बहुत बार हम बहुत सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं शरीर के लिए कि हम वॉकिंग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और ज्यादा तला हुआ भी नहीं खाते हैं, मतलब बहुत कुछ प्रिकॉशंस हम रख रहे हैं, पर पता नहीं फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आती है, फिर भी मुझे ये इफेक्ट क्यों हो गया, ये वायरस का क्यों मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो हमारे थॉट्स का है वो हमने कभी सोचा नहीं था। तो इसलिए तन, मन, अन्न और धन, जब ये तीनों अच्छा रहेगा तब हमारा तन अच्छा रहेगा, एंड दिस इज योगी लाइफस्टाइल। तो अगर ये हमारा घंटा एक है, हम 1 घंटा प्राणायाम करें, योगा करें, बहुत अच्छा, जो तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर 23 घंटा हमारा ये सब है तो किसका असर ज्यादा होगा? आई हैव टू थिंक। तो दिस Raj Yoga lifestyle is not a one day. It is not celebrating that yoga for a day, not doing yoga per day, but becoming a yogi. योगी कोई साधन, खाली योग लगाने वाला नहीं होता है कि सारा दिन वो कोई भगवान की याद में बैठा होता है। योगी is a lifestyle. It is not just meant कि चुपचाप से बैठो और आप मेडिटेशन करो, but it is a lifestyle. तो इस तरह से ये हमारा राजयोगी लाइफस्टाइल है। तो ऐसा योग, इसको ये योग करना जीवन में, दिस इज कॉल्ड सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल योगा डे। तो अगर हमें ऐसा योगा डे सेलिब्रेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा फिर? तो पूरा है, सबसे पहले स्टार्टिंग होगा कि इंफॉर्मेशन। तो जैसे हमने देखा उसमें द वेरी फर्स्ट इज किस तरह की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही दूसरी नहीं है। तो क्या होता है, जब मेरे पास क्वालिटी ऑफ एप्पल एक ही टाइप के है तब तो मुझे वही कंज्यूम करना होगा, वही मुझे हॉकर से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर 2-3 क्वालिटी हो तब तो हम चॉइस एक्सरसाइज कर सकते। तो अभी तक शायद हमने केवल नेगेटिव या इस तरह के इंफॉर्मेशन लिया है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, जो कोर्स में आता है, तो वो जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दूसरा और भी क्वालिटी होती है एप्पल्स की, खाने की, इंफॉर्मेशन की। तो जब वो खाना खाने लग जाए, जब आप अच्छी क्वालिटी ऑफ एप्पल खाने लग जाओ, अच्छे मैंगोज आप खाने लग जाओ, फिर क्या होगा, आपके सामने एकदम सिंपल क्वालिटी रख दिया, अल्फांसो आपके सामने है और एक एकदम सिंपल कलमी आम रख दिया, आपकी क्या दिल होगी? गिवन अ चॉइस, गिवन द अमाउंट, आप क्या चूज करेंगे? अल्फांसो चूज करेंगे, आप ऑर्डिनरी नहीं चूज करेंगे। तो जब हम सुबह सुबह एक बहुत अच्छी पावरफुल पॉजिटिव मेडिटेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, तब ऑटोमेटिक आपका थोड़े समय के बाद, आप 7 डेज ट्राई करके देखना,
थोड़े समय के बाद आपका दिल ही नहीं करेगा कि इस तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन सुने. So this is the yogi lifestyle. तो it starts with information. तो इसलिए जैसे आपने सुना कि कल से कैन वी स्टार्ट, तो अभी हम थोड़ा अपने आप पर मेडिटेशन करके डिसाइड करें कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई हैव टू लीड, आई वांट टू लीड. डू आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट टुडे इंटरनेशनल योगा डे, डू योगा, or do I really want to make yoga as a lifestyle? Decide for yourself. Take time for yourself. और अपने आप की भलाई समझकर हम उसको डिसाइड करें. तो अपने आप को देखें. I, the point of light, pure energy, powerful energy. Who is the head, who is the ruler in this body? Yeah. I, the ruler. Imagine करें कैसा वो जीवन होगा जिसमें सुबह उठते ही मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ. The very first activity of the day is meeting the supreme energy. भगवान से बातें की. दिल की बातें की, पावरफुल बातें की. नो कंप्लेन्स, नो रिग्रेट्स, Yeah. नो अच्छा. सॉरो, लेकिन ओनली प्यार की बातें. और इतनी प्यार की बातें उनसे करने के बाद फिर हम वॉकिंग में गए, वॉक करके आए, बगीचे में गए, क्योंकि उनसे इतनी अच्छी बातें की थी. अब हमारा हाई वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन पर ही दिल है. तो बगीचे में घूम रहे हैं, लेकिन वॉक कर रहे हैं, बट वेरी हाई वाइब्रेशन इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सुनते हुए बातें, परमात्मा से बातें करते हुए वॉक कर रहे हैं. और फिर उसी फीलिंग से आकर फ्रेश होकर हम बहुत अच्छी गॉडली चाइल्ड बनते हैं, गॉडली स्टूडेंट बनते हैं. गॉडली स्टूडेंट, गॉडली स्टडी किया, और उसके बाद हमने आज उस स्टडी से अपने माइंड से एक प्रॉमिस कर ली कि आज से मैं ये काम करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा. और विद दिस प्योर एंड पावरफुल डिसीजन आई गो आउट फॉर द एक्शंस. हम मिलते हैं बहुत लोगों से जो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं. मैंने सुना हुआ है सुबह कि बच्चे, तुमको सबको रिस्पेक्ट देना है, तुम सागर के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर प्योर फीलिंग्स के सागर की कमी नहीं है, तुमको प्योर फीलिंग्स ही देनी है. I get the strength from this information and I accordingly deal. और हम देखते हैं कि धीरे धीरे that person changes. Success in my relationships. So I go out for the actions. शुद्ध अन्न खा रही हूँ, जो अन्न खा रही हूँ वो भी परमात्मा की याद हुआ. और अब फिर जो धन कमाने जा रही हूँ, धन में थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ कि किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करके वो धन नहीं कमा रही. धन भी है, दुआ भी है. आज पूरे दिन हम ये ट्राई करके देखेंगे, और इस तरह दूसरे को खुश करते हुए, स्वयं में खुशी लाते हुए अब हम घर आते हैं. दुआएं भी लेकर आए, धन भी लेकर आए, अच्छा मन भी लेकर आए, और उस दुआओं से
ऐसे जी इस तरह के कमाने के आने के बाद अब मैं सोती हूँ, चैन की नींद आती है, क्योंकि किसी के थॉट्स मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, मैंने किसी की बद्दुआ नहीं ली, नींद चैन की है। ऐसी चैन की नींद में सुबह उठना बहुत इजी हो जाता है। तो अपने आप को विजुअलाइज करें, एम आई रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल? क्वेश्चन करें अपने आप को और अकॉर्डिंगली डिसाइड करें। ओम शांति।